किसी सूझवान पढ़े लिखे विचारवान नूं अपना एडवाइज़र चुन लो, उस तो सलाह लैके किसी किस्म की स्टेटमेंट दिओ, थोनू उत्थे जाके कुछ निकलण वाला नहीं। बार बार टीवी दे उत्ते किसानां दे नुमाइंदे इसनूं बिल ही कही जाते, उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ यही नहीं पता तो बिल ते एक्ट दे विच की फर्क हुंदा। ये बिल जिहड़ा हुंदा जदों पेश किया जाता इनिशियल स्टेजिस दे विच उसनूं बिल कहंदे आ, और जदों पास हो जाता सारे जिहड़े प्रोसैस पूरे करके तो उसनूं एक्ट कहा जाता। इस वेले ये एक्ट बन चुकिया है, ये बिल की फॉर्म विच नहीं है, माफ़ करना इनू बिल ना कहो। जिहड़ा धर्म युद्ध मोर्चा सी जिस दे विच 1.25 लाख बंदा जेलों च चलिया गया और उस दे विच 36 किस्म दीयां मीटिंगां होईयां सी सरकार दे नुमाइंदियां नाल। मैं इत्थे खास तौर ते जिहड़े जा रहे चाई उन्हां नूं मिलण लई उन्हां नूं संबोधन करके कह रहा वो 36 मीटिंगां विचों निकलिया की सी। 36 मीटिंगां दे विचों ब्लू स्टार अटैक निकलिया सी। ब्रेन ऑन टीवी दे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं समझदा सरकार ਜਿਹੜੇ किसानां ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ 36 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ 36 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਸੀ। 36 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਟੈਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ MSP ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ SDM ਤੇ DC ਤੱਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ
मैं खास तौर के उत्ते सारी दुनिया के किसान जिहड़े बैठे आ, मतलब उन्हां दा सारा जिहड़ी मन आ वो इसे चीज़ दे नाल जुड़िया भी इस चों की निकलेगा। उन्होंने खास तौर पर दसना चाहुंदा, जे इस दे सार्थक नतीजे ना निकले तो किसानी इस मुल्क दे विचों तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे किसान। उन्हां दा रोज़गार, उन्हां दा रोटी रोज़ी, उन्हां दा फ्यूचर जिहड़ा वो हमेशा हमेशा लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इस करके बहुत खास जिम्मेवारी उन्हां लीडरां दी आ, उन्हां नुमाइंदियां दी किसानां दियां नूं जिहड़े उत्थे जा रहे। हुण इसे तरीके नाल हुणे तुसीं देख लो, मैं इत्थे खास तौर ते उन्हां नूं वार्न करना चाहुंदा, उन्हां नूं चेतावनी देना चाहुंदा किसानां दे नुमाइंदियां नूं कि थोड़े इस वार्तालाप तो और इस किस्म का जिहड़ा उभार किसानां दा उठिया सारे हिंदुस्तान दे विच, उस तो फायदे उठाउण लई भी बड़े बैठे आ लोग, जिहड़े बड़े चलाक आ, जिहड़े बड़े हुशियार आ, वो कोई अपॉर्चुनिटी भाल रहे आ कि उन्हां दा स्वार्थ पूरा हो जे। ये सारे जो स्ट्रगल चल रही आ, मैं खास तौर ते जिहड़ी अमरिंदर सिंह दी अमित शाह दे नाल मीटिंग हुई आ, कल ही हुई आ, उस दा भी मैं तुहानूं दस दिना। अमरिंदर सिंह ने उस तो बाद बयान दिता कि हिंदुस्तान की जिहड़ी सिक्योरिटी आ उहनूं खतरा इस गल तो। दूसरा उसने कहा कि पंजाब की इकोनॉमी आ जिहड़ी उसनूं बहुत वड्डा भारी घाटा लगेगा इस एजीटेशन दे नाल। सो जल्दी तो जल्दी ये एजीटेशन खत्म हो जाना चाहिए। मैं इत्थे कहना चाहुंदा निमरता सहित कि अमरिंदर सिंह जी फौज दे विच कैप्टन रहे आ, उन्होंने फौज च लड़न का बहुत तजर्बा है, उन्होंने बड़ी सूझबूझ उन्हें लिखिया भी है, फौज दी लड़ाइयां बारे भी लिखिया। तो मैं बेनती करदा कि अमरिंदर सिंह जी तुसी आ जिहड़ी अपनी गद्दी आ पंजाब दी चीफ मिनिस्ट्री दी, इहनूं छड्ड के बॉर्डर ते चले जाओ, बॉर्डर ते जाके देश की रक्षा करो, देश की सिक्योरिटी दी तुसी चिंता रखते हो और उस सिक्योरिटी नूं तुसी किसी ना किसी तरीके नाल कंट्रीब्यूट करो, इस गद्दी नूं छड्डो। तो दूसरे पासे तुसी पंजाब की इकोनॉमी नूं कह रहे हो भी बहुत खराब आ, होर खराब हो जाएगी। 4 साल तकरीबन हो गए तुहानूं चीफ मिनिस्टर बनिया नूं पंजाब दे विच, ते जे इकोनॉमी खराब हुई आ उस दी जिम्मेवारी किस दे उत्ते आ? माफ़ करना, उहदी जिम्मेवारी तुहाडे उत्ते आ। ये 4 सालां दे विच तुसीं महल तां बना ले, इधरले पासे चंडीगढ़ दे नाल बड़े बड़े उत्थे बड़े बड़े महल बना ले, बड़ी बड़ियां उत्थे तुसीं जिहड़े बनाए आ नहाउण नूं, उत्थे ऐशो इशरत करन नूं, पर कोई जिहड़े गरीब पंजाब दे लोक आ, तां गरीबी तो भी अत गरीबी तक चले गए, किसान बर्बादी दी तह तक आ गया। तो तुसीं इस वेले किस गल की चिंता कर रहे हो? मैं तुहानूं यही बेनती करदा कि वर्दी पाओ और तुसीं ये गद्दी छड्ड के बॉर्डर के उत्ते चले जाओ, देश की सिक्योरिटी की सेवा करो और पंजाब नूं अपने हाल ते रहन दिओ। तो इस करके ये अमरिंदर सिंह जी उस वेले भी इन्हां ने जदों धर्म युद्ध मोर्चा सी, जिहड़ी बातचीत हुंदी सी धर्म युद्ध मोर्चे दे लीडर साहबान नाल या उन्हां दे नुमाइंदियां नाल, उहदे विच अमरिंदर सिंह भी कई मीटिंगां दे विच पार्टिसिपेट कीता सी कांग्रेस के नुमाइंदे दे वजों। तो इस करके हुण गल ये आ कि अमरिंदर सिंह जी अमित शाह नाल गल करके जिहड़ा उन्हां दे बच्चों के उत्ते ईडी इनकुआरी कर रही सी, उहदे ते शायद बहुत ठल पै जाएगी, इन्हां नूं तां सिक्योरिटी मिल जाएगी, इन्हां दी तां इकोनॉमी बचत हो जाएगी, अंदर खूनी अंदर खाते जिहड़ी गलबात अमित शाह नाल खैर मुक्की आ। मैनूं लगदा कि जिहड़े ईडी दी इनकुआरी हो रही सी अमरिंदर सिंह दे बेटे दी या होर उन्हां दे फैमिली मैंबर दी, उहदे विच तां ठल पै जाएगी। पर मैनूं इस गल ते कोई यकीन नहीं कि अमरिंदर सिंह दी गलबात जिहड़ी अमित शाह नाल होई आ उस दे नाल किसी किस्म की सहायता जिहड़े किसान आ उन्हां नूं मिलेगी, जिहड़े एजीटेट कर रहे आ ठंड दे विच, इन्नी तकलीफ दे विच, बजुर्ग, बच्चे, औरतां, जवान जिहड़े आ वो बेचारे उत्थे बैठे बॉर्डर दे उत्ते अपना इस किस्म का दुखांत भोग रहे आ। अज सारी दुनिया दियां जिन्ने जिहड़े किसानी दे नाल रिलेटेड आ, यही नहीं भी इस मुल्क दे विच हुण देखो
जे कनेडा के प्राइम मिनिस्टर ने की गल कही है और उस दे उत्ते इन्ना बाब रोला उठ रहा भी पता नहीं उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ किहड़ी गल कह दी। उन्हें सिर्फ इक्को गल कही आ, जिहड़ा किसानां दे उत्ते तशद्दद होया चीफ मिनिस्टर हरियाणा खट्टर ने करवाया, टोए पट्टे गए जिहड़ी सड़कों के उत्ते सड़कां बनाउण दी बजाए उधर टोए पट्टे ताकि कोई ना कोई दुख तकलीफ क्रिएट की जाए जान बुझ के किसानां दे रस्ते दे विच। और उन्होंने ठंडे पानी दी बछाड़ा कीतियां, उन्होंने डंडा चार्ज किया गया। हुण मतलब जिहड़ी IT सैल आ RSS का वो कोशिश करने की कोशिश कर रहा कि वो चीज़ तो जिहड़ी बनौटी आ, जद के रियलिटी है, जद के फैक्ट है। 7 किसान इस सारे घटनाक्रम दे विच शहीद हो चुके हैं और वो बेचारे बजुर्ग हुण होर भी कई बीमार भी हो गए होणगे, कईयां दी अखां ते इंजरी आई आ, कईयां दी जिस्म दे उत्ते इंजरियां आईयां। तो बहुत बड़ा यह घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम दे विच ट्रूडो नूं इसे तरीके नाल विक्टिम बनाया जा रहा और उहदे ते इस किस्म का विछाड़ किया जा रहा भी पता नहीं उन्हें की कर दिता। इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट दे विच भी मसला यह उठिया, इसे तरीके नाल दूजे मुल्कों इंग्लैंड दे विच भी ये मसला उठिया। पार्लीमेंट के उत्थे दे हाउस ऑफ कॉमन्स के मैंबरस ने एक क्वेश्चन रेस किया भी किस तरीके नाल तुसीं तशद्दद कर रहे हो। और मैं तुहानूं इत्थे एक खास तौर पर गल दसनी चाहुंदा, ये किसानां दे एजीटेशन पहला एक एजीटेशन है जिस दे विच सरकारी जान माल का कोई नुकसान नहीं होया, किसी बंदे का प्राइवेट बंदे का जान माल का नुकसान नहीं होया, बल्कि सरकार वालों कुछ शरारती अंशां नूं उन्हां बॉर्डर ते भजवा के उन्हां दे ट्रैक्टरां दे विच सूए मार मार के उन्हां नूं पंक्चर करके उन्हां नूं खराब करने की कोशिश की गई है। पर मैं दात दिना उन्हां किसानां दे पेशेंस नूं और उन्हां किसानां दी सहनशीलता नूं कि उन्होंने इन्हां गल्लां दे उत्ते रिएक्ट नहीं किया। सरकार हर पहलू तो कोशिश कर रही है भी ये सारा पीसफुल नॉन वायलेंट ते डेमोक्रेटिक जिहड़ा एजीटेशन आ इस नूं लॉ एंड ऑर्डर दे विच तब्दील कर दिया जिस तरीके नाल उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चे वेले कीता सी। तो इस करके किसानां नूं सुचेत होण दी लोड़ आ। किस गल तो सुचेत होण दी लोड़ आ? सरकार इस नूं टारपीडो करना चाहुंदी आ। सरकार इस पीसफुल ते नॉन वायलेंट एजीटेशन आ उस नूं उस दे विच मिलीटेंसी इस किस्म दी चीज़ां पा के बदनाम करना चाहुंदी आ और नाल दी नाल उस नूं लॉ एंड ऑर्डर च कन्वर्ट करना चाहुंदी आ जिस तरीके नाल उन्होंने धर्मयुद्ध मोर्चे कीता सी। तो ज़रूरत आ कि किसान बड़ा फराख दिली दे नाल बड़े मतलब खुले दिल दे नाल और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया दे विच कल आर्टिकल गुरचरण दास आ उसने किसानां दे खिलाफ आर्टिकल लिखिया। अज एडिटोरीअल लिखे गए आ ट्रूडो के खिलाफ लिखे जा रहे हैं। बाहर जिहड़े बैठे आ किहड़ा ट्रूडो ने बेचारे ने यही गल कही आ भी किसानां दे उत्ते जिहड़ा तशद्दद होया वो नहीं होना चाहिए, किसानां ते जिहड़ा लाठी चार्ज होया नहीं होना चाहिए, किसानां ते जिहड़े अथरू गैस के गोले सिੱਟੇ गए वो नहीं सिੱਟੇ जाने चाहिए सी। तो यही गल कही है। होर इस तो एक इस गल दे विच किहड़ा गुनाह कर दिता ट्रूडो ने या होर जिहड़े विदेशी बड़े बड़े स्टेट्समैन आ या बड़े बड़े पॉलीटिशियन आ। तो इस गल नूं लै के वाह बरोला इकट्ठा क्रिएट किया जा रहा, एडिटोरीअल लिखे जा रहे हैं। अज दे हिंदुस्तान टाइम्स दे विच भी एडिटोरीअल इस किस्म का लिखा गया। तो किसानां नूं सचेत होने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ने और जिहड़े किसान विरोधी जिहड़े लोग आ सो कॉल्ड इंटैलेक्चुअल और जिहड़े पेड इंटैलेक्चुअल आ वो इस किस्म के घिनौने आर्टिकल लिख रहे हैं और अखबारां दे एडिटर इस किस्म के एडिटोरीअल लिख रहे हैं। ट्रिब्यून ने भी इसे किस्म दी गल्लां कीतियां। ट्रिब्यून ने आर्टिकल लिखाया किसानां दे खिलाफ और अपना एडिटोरीअल लिखिया ट्रूडो के खिलाफ। तो इस करके ये सारा मतलब इस किस्म का मीडिया ब्लिट्स मतलब किसानां दे सिर दे उत्ते लाया जा रहा। किसानां नाल जिहड़े थोड़ी बहुती हमदर्दी करते आ उन्हां नूं भी इस कटहरे विच खड़ा किया जा रहा। तो सुचेत होने की लोड़ आ। सुचेत हो के मैं ये बेनती कर रहा बार बार भी ये डायलॉग दे विचों कुछ निकलण वाला नहीं।
ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਤ ਰਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਚੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਗਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਰਸਤਾ, ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।